بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ترجمہ، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ایمان لانے سے مراد یہ نہیں کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو بندہ ایمان والا ہو گیا، دل سے بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجان و عمل بالارکان، یعنی کلمہ طیب کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور پورے جسم کے اعضاؤں کے ساتھ عمل ایمان ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کلمہ طیب کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ حضرات محترم، کلمہ طیب ایمان کی صرف زبان سے نہیں دل سے بھی ادائیگی ہونی چاہیے۔ جس کا دل ایمان کی گواہی دے حقیقت میں وہی مومن کہلاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کچھ عربی، کچھ گاؤں کے دیہاتی لوگ آئے اور وہ ان سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم ایمان والے ہو گئے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن ہاں تم تو صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہوگا جو اللہ کو جانتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ ہم تک توحید و رسالت کا پیغام لانے والے، اللہ کو دیکھنے والے، اللہ کو جاننے والے وہی تو ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے تو وہ ہے، ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو، زبان سے ایمان کا اقرار کرنا آسان ہے، لیکن دل سے اس کی تصدیق کرنا اتنا آسان نہیں۔ بندہ خود سے یہ نہیں کر سکتا، دل سے تصدیق کرنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کا دوست بننا چاہتا ہے، اس تک اپنی رسائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وسیلہ تلاش کرے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی پا جاؤ۔ میرے عزیزو، اللہ کو جاننے اور پہچاننے اور اس کا قرب پانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے نائب رسول یعنی مرشد کامل، فقیر کامل، اولیاء اللہ کا وسیلہ ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دل میں کسی ولی اللہ کی محبت رکھنے سے، ان کے در پر آنے جانے سے، ان کے دربار میں خدمت کرنے سے ان کی ان ولی سے روحانی بیعت ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ایسی بیعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ جس ولی سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، ان کا فیض اس بندے پر ضرور ہوتا ہے، لیکن نسبت نہیں۔ دراصل بیعت کی کچھ شرائطیں ہوتی ہے۔ بیعت ہونے کے لیے مرید کے ہاتھ میں پیر کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، پیر کا روبرو ہونا ضروری ہے، پیر اور مرید کے درمیان عہد و اقرار ہونا ضروری ہے، گواہی ہونا ضروری ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ عاشق رسول ہیں۔ آپ ایسے عاشق رسول ہیں جن کی تعریف خود حضور پاک نے منبر پر کھڑے ہو خطبے میں بیان کی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے خود حضور پاک نے اپنا خرقہ مبارک بھجوایا، اور حضور پاک نے خود اپنی امت کے لیے دعائیں خاص کرنے کے لیے کہا۔ ایسا عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر
बैत रिजवा की और इस फानी दुनिया में अपने आखिरी दम तक उनकी इताअत व सोबत में रहे। जंग सिफीन के दौरान आपने इस फानी दुनिया से पर्दा किया। जंग के दौरान आप शदीद जख्मी हुए और मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के गोद में आपने शहादत को पाया। दादा हुजूर सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी बंदे का बंदा बनकर बंदगी सीखी है मैंने, किसी बंदे का बंदा बनकर बंदगी सीखी है मैंने। दादा हुजूर सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है जिनके फैज़ से, जिनकी रहबरी से, जिनकी निस्बत कामिल के वसीले से कई औलिया अल्लाह मकाम विलायत को पाते, जिनमें से सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास सरकार मकबूली पीर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद है। सरकार पीर आदिल वो हस्ती है जो फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफी अल्लाह के मकामात से गुजरे है और बका बिल्ला के मकाम को पाया है। एक शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया है, अगर कुछ पाना है तो फिर किसी का बनना पड़ता है, अगर कुछ पाना है तो फिर किसी का बनना पड़ता है, किसी अहले नज़र अहले बशर से मिलना पड़ता है। कुछ दिन पहले कुछ अफराद सवाल कर रहे थे कि फनाफी शेख किसे कहते हैं। सबसे अव्वल तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि बैत होने का असल मकसद क्या है, फिर मुर्शिद कामिल किसे कहते हैं, और फिर फनाफी शेख की मंजिल पर कौन फाइज होता है। दादा हुजूर सरकार मखमली पीर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरअसल बैत होने का असल मकसद अपने खुदा को जानना, उसको पहचानना, उसको अपना बनाना, उसे अपना बनाकर अपनी हस्ती को उसकी ज़ात में फना कर देना, यही बैत होने का असल मकसद है। जो बंदा मुर्शिद कामिल की निस्बत में आकर भी ख्वाहिशात नफ्स और लज्जत दुनिया में फंसा रहा, उसके लिए सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुरीद वो नहीं जो दुनिया की ख्वाहिश रखता है, वो तो अपने अपने मुरादों के मुरीद है। मेरा मुरीद सादिक तो फ़कत वो है जो अल्लाह ही की ख्वाहिश रखता है। आगे सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुरीद जब राह सुलूक पर चलने का इरादा करे तो अपने आप को अपने मुर्शिद कामिल के हवाले ऐसा कर दे जैसे गुस्साल के हाथ में मैयत होती है। मुरीद जब किसी सिलसिले में बैत होता है तब रूहानी तौर पर उस मुरीद की निस्बत उस सिलसिले के तमाम बुजुर्गों से जुड़ जाती है। उन तमाम बुजुर्गों का फैज़ मुरीद को उसके मुर्शिद कामिल के ज़रिए हासिल होता है। लेकिन मुरीद की निस्बत उन तमाम बुजुर्गों से तभी जुड़ती है, ये सब तभी मुमकिन होता है जब मुरीद के मुर्शिद की निस्बत कामिल हो, उसका ईमान पुख्ता और सादिक हो। मुरीद के लिए भी यही बात है कि उसकी निस्बत भी तब तक सलामत रहती है जब तक उसका अपने मुर्शिद कामिल पर ईमान, यकीन, तवक्कल कायम रहता है। ये जो मुरीद की कड़ी बकड़ी बुजुर्गान सिलसिला से जो निस्बत जुड़ती है, उसी रस्सी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजबूती से थामे रखने को कहा है, क्योंकि यही वसीला उसे अल्लाह का कुर्ब अता करता है और उसे अल्लाह तक पहुंचाता है। मेरे अजीज़ों, जिस तरह अपने आप को देखने के लिए, अपनी सूरत को देखने के लिए एक आईने की ज़रूरत होती है, उसी तरह अपने आप की हकीकत को जानने के लिए और अपने रब को पहचानने के लिए, जानने के लिए और देखने के लिए मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुर्शिद कामिल की रसाई हक ताला तक होती है। हज़रत जुनैद बगदादी आप वो अजीम हस्ती है जिनका औलिया अल्लाह के दरमियान ऐसा मकाम है जैसा फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम। आप अपने दौर के काज़ी वक्त रहे, शरीयत मोहम्मदी के पाबंद रहे हैं। उनका एक वाक़या है, एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी और उनका एक मुरीद सफ़र में थे। दौरान सफ़र चलते चलते वो दरिया दज्जला तक पहुँच गए। अब क्योंकि दरिया पार करना था तो हज़रत की एक बहुत मशहूर मारूफ करामात है कि आप पानी पर आसानी से चला करते। लेकिन इस बार उनका मुरीद भी उनके साथ था, तो मुरीद जिद करने लगा कि हज़रत मुझे भी आपके साथ दरिया पार करना है। तो आपने कहा ठीक है। आपने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि तू या जुनैद का विर्द करते हुए मेरे साथ साथ चल, और आप खुद या अल्लाह का जिक्र करने लगे। अब वो मुरीद भी अपने पीर के फरमान के मुताबिक वही करने लगा। दोनों पानी पर चलते चलते बीच दरिया तक पहुंच गए। फिर उस मुरीद के दिल में वसवसा आ गया,
उस शैतानी वसवसे वाले ने उस मुरीद से कहा कि हजरत तो या अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और तू या जुनैद का जिक्र कर रहा है, तू भी या अल्लाह का जिक्र कर। वो अल्लाह तो हर किसी की सुनता है, वो अल्लाह जो जुनैद की सुनता है तो तेरी क्यों नहीं सुनेगा? वो अल्लाह जो जुनैद को दरिया पार करा सकता है तो तुझे क्यों नहीं पार कराएगा? अब यहाँ उस मुरीद के ईमान का इम्तिहान हो रहा था, तो बस वो भी अपने पीर की देखा देखी वो भी या अल्लाह कहने लगा। जैसे ही उसने या अल्लाह कहा वो दरिया में डूबने लगा। जैसे ही वो डूबा तो हजरत को सदा लगाने लगा कि हजरत बचाइए, हजरत बचाइए। हजरत ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया और कहने लगे कि तुझे तो या जुनैद कहने को कहा गया था, जो कहा गया है वही कर। वो मुरीद फिर से या जुनैद का विर्द करने लगा और पानी पर चलने लगा। अब और वसवसा उसके दिल में बढ़ गया। गौर करने लगा कि या जुनैद कहने पर मैं पानी पर चल रहा हूँ और या अल्लाह कहने पर मैं डूब रहा हूँ। जैसे तैसे उसने दरिया पार कर लिया। जैसे ही दरिया पार हुआ, दरिया पार करने के बाद हजरत से उसने अर्ज किया कि हजरत ये क्या माजरा है? जब मैं या जुनैद कह रहा था तो पानी पर चल रहा था और जैसे ही या अल्लाह कहा तो पानी में डूबने लगा। तो इस बात पर हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तेरी रसाई जुनैद तक है और जुनैद की रसाई अल्लाह तक है। तो पहले अपने पीर से तो अपनी निस्बत कामिल कर ले। मेरे अजीजों, आम शख्स जिस रब को मानता है, औलिया अल्लाह दर हकीकत उस रब को जानते हैं। मानने और जानने में बहुत फ़र्क होता है। एक और वाक़या है। एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी का एक नया मुरीद था। चंद दिन पीरो मुर्शिद के पास आया। आकर उनकी सोहबत में रहकर कुछ विर्द कुछ बातें जान ली तो खुद को अपने दिगर भाइयों से आला व अफजल समझने लगा। अपने आप को बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझने लगा और हजरत के पास आना जाना छोड़ दिया। कुछ दिन बीते तो हजरत ने देखा कि वो मुरीद खानका में नहीं आ रहा, तो उनको उसकी फिक्र होने लगी। और फिक्र हो भी क्यों ना, पीर और मुरीद का रिश्ता ही ऐसा होता है जैसे आशिक और माशूक का होता है, जैसे बाप और बेटे का होता है। अब क्योंकि मुरीद हजरत के पास नहीं आ रहा था तो आपने सोचा शायद बीमारी ना हो, तो आप उसका हाल जानने उसके घर तशरीफ़ ले गए। उस मुरीद के घर पहुंचने पर उससे मुलाकात की, सलाम दुआ हुई। फिर आपने उस मुरीद से कहा कि तू अब आता क्यों नहीं? तो वो मुरीद कहने लगा कि मुझे अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद अब इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो गया हूँ, मैं क्यों अभी अपने आप से किसी और को बड़ा मानूं? तो हजरत ने उसे बड़ी ही आजीज़ी से पूछा कि क्या हुआ? मुरीद ने कहा कि मेरा मुकाम तो इतना बुलंद है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो 2 फरिश्ते आकर मुझे बुराक पर बिठाकर जन्नत की सैर कराते हैं। क्या आपने भी कभी जन्नत की सैर की है? हजरत इस बात पर कुछ देर खामोश रहे। फिर कहा कि आज जब जन्नत में जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। मुरीद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो ठीक है आप कह रहे हैं तो पढ़ लेता हूँ। बस इतनी बात कहकर हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अपने खानका की तरफ तशरीफ़ ले गए। फिर जब रात हुई, मुरीद सो गया। फिर वही मामला उसके साथ पेश आया। इस बार जन्नत में जब वो पहुंचा तो हजरत की वो बात उसे याद आ गई। उसने ला हौल पढ़ी। जैसे ही पढ़ना था तो क्या देखता है कि जन्नत के नज़ारे उसके नज़रों के सामने से हट गए और वो पत्थरों के ढेर पर पड़ा हुआ था। वो जो फरिश्ता नुमा शक्ल वाले जो उसे सैर करा रहे थे वो भागने लगे। उनसे ये कहने लगा, अरे रुक जाओ, कहाँ दौड़े जा रहे हो? इस पर वो बोले कि हम कोई फरिश्ते नहीं बल्कि हम तो उसका रूप है जिसने हजरत आदम को जन्नत में वरगलाया था। तू जुनैद बगदादी के पास जाकर उनकी सोबत में रहकर अल्लाह का कुर्ब पाने लगा था तो हमने तुझे उस राह से गुमराह करना चाहा। बस इतनी बात सुनना ही क्या, बस इतनी बात सुनना ही क्या, वो नींद से बेदार हुआ और वो रोने पीटने लगा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। अब हजरत के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, वो क्या सोचेंगे। मैंने उनको इतने तल्ख अल्फाज कहे, फिर भी उसका दिल नहीं माना और वो उसी हालत में अपने पीर के पास चला गया।
जैसे ही उनके पास पहुंचा, गिड़गिड़ाते हुए हजरत से माफ़ी तलब की, अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। फिर हजरत ने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बुलाया, उसे अपने पास बिठाया, उसे समझाया और फिर से अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी की तरफ उसका रुख किया। मेरे अजीज़ों, शैतान का काम यही है कि वो बंदे को अल्लाह का कुर्ब पाने से, उसकी इबादत करने से रोकता है। इसलिए तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की सोबत क्यों ज़रूरी है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ज़माना सोहबत ब औलिया, एक ज़माना सोहबत ब औलिया बेहतर सत सलातात बेरिया। औलिया अल्लाह की एक लम्हे की सोबत 100 साल की बेरिया यानी बगैर दिखावे वाली इबादत से बेहतर है। जो बंदा मुर्शिद कामिल के निस्बत इख्तियार करता है तो मुर्शिद कामिल उस मुरीद को वही इल्म, वही अमल अता करते हैं जिसके ज़रिए उन्हें कुर्ब इलाही हासिल हुआ। मुर्शिद कामिल वही है जो अपने मुरीद को गुलाम नहीं बल्कि अपने जैसा बनाना चाहता है। हकीकी मुर्शिद कामिल तो वो है जो फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफी अल्लाह के मकामात से गुजरा है। जो मुरीद फनाफी शेख और उसके आगे की मंजिलात को पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि सबसे अव्वल अपने मुर्शिद कामिल, पीर कामिल की सोहबत इख्तियार करे। मुर्शिद कामिल बंदे को दुनियावी लज्जतों से, दुनियावी ख्वाहिशात से निकालकर बंदे का रुख अल्लाह की तरफ करते हैं। दरअसल मुर्शिद कामिल वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का। ये वही वसीला है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। जो मुरीद अपने पीर की सोबत में रहता है, अपने पीर के पेशे नजर रहता है, उसी मुरीद के कल्ब पर, नफ्स पर, उसके बातिन पर पीर कामिल की खास नजर करम होती है। यानी पीर मुर्शिद उस मुरीद के नफ्स, दिल और ख्यालात को पाक करते हैं। मुरीद को चाहिए कि अपने पीर की सोबत में रहकर निस्बत कामिल को कायम रखे ताकि उसके पीर कामिल की नजर इनायत उसके कल्ब, उसके बातिन पर होती रहे और उसके पीर कामिल का रूहानी फैज उस पर होता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्शिद कामिल को खास सिफतें अता की होती है जिसके ज़रिए मुरीद की बातिनी कैफियत बदल जाती है, उसकी कायनात बदल जाती है। यानी मुर्शिद कामिल बंदे को आलम नासूद से निकालकर आलम मलकूत, आलम जबरूत से होते हुए आलम लाहूत और उसके आगे ले जाने की कुव्वत रखते हैं। कई औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने खुद की हकीकत को जानने और अपने रब को पहचानने की जस्तजू में हजारों मीलों का सफर तय करके मुर्शिद कामिल की तलाश की, उनसे निस्बत कायम की, उनकी सोबत में रहकर इल्म बातिन और इल्म लदुनी और तमाम राज़ व नियाज़ को पाया। जैसे कि कुर्ची शरीफ के हज़रत अशरफ जहां माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैह अब बल्क के बादशाह की शहजादी थी, लेकिन खुदा को जानने और पहचानने के ज़ौक़ व शौक़ में आपने दुनियावी बादशाही को ठुकरा कर फ़कीरी को अपनाया। अपने पीर कामिल, मुर्शिद कामिल की तलाश में बल्क से निकलकर वतन हिंद तक का सफ़र तय किया और सरजमीन दक्कन में आकर आपने हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर आपने बैयत की और अपनी तमाम जिंदगी उनकी इताअत में गुजारी। एक शायर ने क्या खूब फरमाया है कि अगर कुछ पाना है तो फिर किसी का बनना पड़ता है, अगर कुछ पाना है तो फिर किसी का बनना पड़ता है, किसी अहले नज़र अहले बशर से मिलना पड़ता है। बंदा जब मुर्शिद कामिल से बैत हो रहा होता है तब दरअसल पर्दे की आड़ में वो अल्लाह ही से बैत हो रहा होता है। जाहिर में मुर्शिद, बातिन में हक ताला खुद मौजूद होता है। हकीकत में मुरीद की रहनुमाई अल्लाह ही कर रहा होता है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, तुम जिस हाथ में अपना हाथ देकर बैत हो रहे हो वो अल्लाह ही का हाथ है। जब मुरीद तसव्वुफ की राह में कदम रखता है, राह सुलूक पर चलने का इरादा करता है, तब उसकी हालत एक नाबिना शख्स यानी एक अंधे शख्स की तरह होती है। उसकी नज़रों पर पर्दा पड़ा होता है और वो हकीकत को देखने से महरूम रहता है। वाहिद एक पीर कामिल की ही ज़ात है जो उस सालिक के नज़रों से पर्दा उठाती है
اس کی نظروں کو پاک کرتی ہے اور اس کی نظروں میں حقیقت کی ضیا عطا کرتی ہے۔ جیسے جیسے مرید اس راہ میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس پر ایک نیا راز کھلتا ہے، ایک نئی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جو مرید مرشد کامل کی صحبت میں رہتا ہے، ان کے پیش نظر رہتا ہے، تو مرشد کامل اس مرید کے باطن کو، اس کے قلب کو، اس کے نفس کو پاک کرتے ہیں، اس کے ایمان کو درست کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو انا کی، تکبر کی، میں پنے کی گندگی ہے اس کو پاک کرتے ہیں۔ اسے توبہ کرا کر تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کی جاتی ہے، اسے ادب سکھایا جاتا ہے۔ پھر مرشد کامل اس مرید کو ذکر خاص عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے اس کے اندر جو لطائف ہے وہ بیدار ہونے لگتے ہیں، اس کا قلب زندہ ہونے لگتا ہے۔ کل تک جس دل سے دنیا کی ہوس کی بو آ رہی تھی، اب وہی دل پاک ہونے کے بعد اس دل میں اللہ رسول کی صدا آنے لگتی ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد تمام فرض و نفل عبادتیں ادا کرتے ہوئے اور مرشد کامل کے عطا کیے ذکر خاص کو کرتے ہوئے مرید جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ اس کے پیر نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا۔ کل تک وہ کیا تھا اور آج وہ کیا ہے۔ جب اسے اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے تب وہ اپنے مرشد کامل سے عشق کرنے لگتا ہے۔ وہ محبت جو اسے دریار تک کھینچ لائی تھی، اب وہی محبت عشق میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مرید کو اسی عشق مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ جب طالب صادق تصور شیخ میں رہتے ہوئے اپنی ہر عبادت ذکر خاص کرتا ہے، تب وہ فنا فی شیخ کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق مرشد اللہ رسول کی عشق کی علامات ہے۔ مرشد کامل اللہ رسول کا سچا نائب ہوتا ہے۔ فنا فی شیخ کا مقام یہ وہ مقام ہے جب سالک راہ سلوک پر چل کر عشق مرشد میں، تصور شیخ میں اس قدر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا۔ اس کے اندر خود اس کے مرشد کامل جلوہ نما رہتے ہیں۔ اس کی ہر ادا اپنے پیر کے جیسے ہو جاتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کی ہر ادا مرشد کامل کے جیسے ہو جاتی ہے۔ ایسا مرید عشق پیر میں اپنے آپ کو جلا کر اپنی ہستی کو پیر کی ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ جب مرید اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے مرشد کی ہر بات پر راضی رہتا ہے۔ وہ جس طرح چاہے امتحان لے اس پر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ مرشد کامل جب کسی بات کا حکم دے تو وہ مرید اس حکم کو سچے دل سے اور پوری کوشش سے اس حکم کو بجا لاتا ہے۔ مرشد کامل کا حکم اس کے لیے بس حکم آخر ہوتا ہے۔ جب مرید فنا فی شیخ کی منزل کی طرف آتا ہے تب اس کے نفس میں بھی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ جب مرید کا نفس تبدیل ہوتا ہے تب ایسے مرید کے اندر تقوی، پرہیزگاری، سخاوت، صبر اور خاکساری ہوتی ہے۔ وہ بندہ مخلوق خدا بندی سے محبت رکھتا ہے، ہر کسی سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے عمل صالحین اور صدیقین کے جیسے ہو جاتے ہیں اور اس کے اخلاق اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ مرید باصفا پر جب عشق پیر غالب آ جاتا ہے تو اپنی جان و دل سب کچھ اپنے مرشد کامل پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ ہر دم اپنے پیر کی اطاعت اور خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ جیسے کہ ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان پر، ایک حکم پر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور حضور کے حکم کے مطابق ان کے بستر پاک پر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ کفار مکہ کے ارادے کیا تھے۔ پھر جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے ان سے عرض کیا کہ یا علی بتاؤ وہ رات کیسے گزری؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے بہترین رات، مجھے اتنی پیاری نیند آئی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنی پیاری اور میٹھی نیند کو نہ پایا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ کفار مکہ
तो उस मकाम पर कत्ल के इरादे से खड़े थे। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो सिर्फ मेरे आका मेरे हुजूर का फरमान याद था कि आपने फरमाया था कि सुबह उठकर मेरे पास जो लोगों की अमानतें हैं उसे सही सलामत लौटा देना और मदीने आ जाना। मेरा ईमान तो यही है कि जो हुजूर ने फरमा दिया तो बस वो होना ही है। पूरी कायनात इधर की इधर हो सकती है लेकिन मेरे हुजूर का फरमान नहीं बदल सकता। जाहिर सी बात है मौला कायनात के मर्तबे को कोई नहीं पा सकता, लेकिन मुरीद पर इश्क पीर जब गालिब आ जाता है तो उस पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। ऐसा मुरीद हरदम अपने पीर कामिल को हाजिर और नाजिर समझता है, वो एक लम्हा भी अपने आप को मुर्शिद कामिल से जुदा नहीं समझता। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साबियों से फरमाया कि अल्लाह के दीन के खातिर अपने माल और दौलत में से खिदमत पेश करो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर की तमाम कीमती चीज़ों को अपनी पूरी दौलत को लाकर हुजूर के कदमों में पेश किया, यहाँ तक कि आपने अपना लिबास तक बेच दिया और टाट का लिबास पहनकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। एक मरतबा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने 13 ऊंट माल और दौलत से लदे हुए कुर्बान कर दिए बस अपने पीर की जूतियों को वापस खरीदने के लिए, और फिर भी कहने लगे कि सौदा बहुत सस्ता हुआ। मेरे अजीजों, ये होता है इश्क, यही है फना फी शेख का मकाम। ये वो मकाम है जब मुरीद पूरी तरह अपने मुर्शिद कामिल के रंग में रंग जाता है और अपनी ज़ात को अपने मुर्शिद कामिल की ज़ात में फना कर देता है। जब मुरीद फना फी शेख के मकाम को पहुँचता है तब उसकी सूरत में मुर्शिद कामिल की सूरत नजर आने लगती है, उसकी हर अदा मुर्शिद कामिल की तरह हो जाती है। इस मुकाम पर मुरीद का हाल कुछ इस तरह होता है कि हजरत बू अली शाह कलंदर अपने कलाम में इरशाद फरमाते हैं कि मनम महवे खयाले वो, मनम महवे खयाले वो नमी दानम कुजा रफ्तम, शुदम गर के विसाले वो नमी दानम कुजा रफ्तम। ऐसा मुरीद फना फी शेख के मकाम पर फाइज रहता है। मेरे अजीज़ों, फना फी शेख का मकाम बहुत बड़ा मकाम है। ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता, सालों की मेहनत लगती है इस मकाम पर पहुंचने के लिए। इस मकाम पर पहुंचने के लिए बंदे के अंदर जो तकब्बुर, अना, मैं पने की नापाकी है उसे ख़त्म करना पड़ता है, और ये नापाकी ऐसी है जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, बरसों की मेहनत लगती है, और बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इस अना को ख़त्म करने के लिए बंदे को बहुत से इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। जब बंदा इस अना से पाक होता है तभी उसे कुर्ब इलाही हासिल होता है। दरअसल चंद लोग दुनिया में ऐसे भी है जो बस तकवा और परहेजगारी का लिबास ओढ़कर अपने आप को सूफ़ी कहलाते हैं, अपने आप को अल्लाह फ़कीर कहलाते हैं, लेकिन दरअसल वो तो लफ्ज़ सूफ़ी और लफ्ज़ फ़कीर की हकीकत को ही नहीं जानते। उनको ज़रा सा हकीकत का आईना दिखा दिया जाए तो अकड़ने लगते हैं। उनके दिल मखलूक खुदाबंदी के लिए नरम नहीं होते, और दर हकीकत तो यह है कि अकड़ना तो मुर्दों की सिफत है। मेरे अजीज़ों, सुनी सुनाई बातें कहना आसान है या किसी के कौल की नकल करना आसान है, लेकिन दरअसल हकीकत तो वही जानता है जो इस राह से गुजरा है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए, अपनी इबादत और रियाजत के ज़रिए इन मंजिलात को पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पीर कामिल रहबर कामिल सरकार तजल्ली पीर साहब किबला चिराग मकमली पीर की ही अता है। ये उन्हीं का फैज़ है जो आज खाकसार आपके नज़दीक ये पैगाम हक पेश कर रहा है। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबन मिनल मुहसिनीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व अस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।